ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਆਓ ਸਰਵਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੰਤ ਮਸਕੀਨ ਜੀ ਦੀ ਕਥਾ ਵਿਚਾਰ। ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਘਰ ਮੋਹੇ ਘਰ ਮੋਏ ਪਿਤਰੀ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਸ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ ਵਡੀਏ ਹੱਥ ਧਲਾਲ ਕੇ ਮੁਸਵੀ ਏ ਕਰੇ ਨਾਨਕ ਅੱਗੇ ਸੋ ਮਿਲੇ ਜੇ ਖੱਟੇ ਘਾਲੇ ਦੇ ਮੱਲਾ ਪਹਿਲਾ ਜਿਉ ਜੋਰੂ ਸਿਰ ਨਾਵਣੀ ਆਵੇ ਵਾਰੋ ਵਾਰ ਝੂਠੇ ਝੂਠਾ ਮੁਖ ਵਸੇ ਨਿਤ ਨਿਤ ਹੋਏ ਖੁਆਰ ਸੂਚੇ ਏ ਨਾ ਆਖੀਏ ਬੈਂਜ ਪਿੰਡਾ ਧੋਏ ਸੂਚੇ ਸੇ ਨਾਨਕਾ ਜਿਨ ਮਨ ਵਸਿਆ ਸੋਏ। 17ਵੀਂ ਪੌੜੀ, ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ 2 ਸ਼ਲੋਕ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ। ਪ੍ਰਥਮ ਸ਼ਲੋਕ ਵਿੱਚ ਉਸ ਧਾਰਨਾ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬੜੀ ਪੁਰਾਣੀ ਮਨੋਤ ਚਲੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਮਿਤ ਕੁਝ ਦਾਨ ਕਰੀਏ, ਕੁਝ ਪੁੰਨ ਕਰੀਏ, ਭੋਜਨ ਅੰਨ ਵਸਤਰ, ਤਾਂ ਉਹ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਚਲਾਈ ਗਈ ਹੈ, ਚਲਾਉਣ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਜਾਪਦਾ ਹੈ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਸਵਾਰਥ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਜੋ ਹੈ ਇਹ ਚਲੀ ਹੈ। ਵਰਨਾ ਇਹ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਖਾਵੇ ਕੋਈ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ, ਔਰ ਉਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚੇ ਜੋ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗਿਆ ਹੀ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਬੋਧ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਇਸ ਦਾ ਕੋਈ ਪਤਾ ਵੀ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸ਼ਰਾਧਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰਥਾ ਜੋ ਸਾਡੇ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੋਈ, ਉਸ ਬਾਰੇ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਆਪਣਾ ਨਜ਼ਰੀਆ। ਜੈਸੇ ਹਰ ਧਰਮ ਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਰਹਿਬਰੀ ਪੁਰਸ਼ ਦਾ ਕੁਝ ਇਤਿਹਾਸਕ ਪੱਖ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕੁਝ ਸਿਧਾਂਤਿਕ ਪੱਖ। ਇਤਿਹਾਸਕ ਤੱਥ ਸਾਹਿਬ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਪਣੀ ਬਾਣੀ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਇਤਿਹਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਿਧਾਂਤ ਤੋਂ ਗਹਿਰਾ ਨਜ਼ਰੀਆ, ਬੜੀ ਪੈਨੀ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਕਿਧਰੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਗੱਲ ਸਮਝਦੇ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕੋਈ ਦਾਅਵੇ ਨਾਲ ਆਖੇ ਕਿ ਨਹੀਂ, ਖਾਵੇ ਇੱਕ ਤੇ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ, ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚੇਗਾ। ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਜੀ ਦਾ ਵੀ ਇਸ ਬਾਰੇ ਆਪਣਾ ਇਹ ਨਜ਼ਰੀਆ ਹੈ ਕਿ ਜੀਵਤ ਪਿਤਰ ਨਾ ਮਾਨੇ ਕੋ ਮੂਵੇ ਸਰਾਧ ਕਰਾਈ ਪਿਤਰ ਵੀ ਬਪਰੇ ਕਿਉਂ ਕਰ ਪਾਵੇਂ ਕਊਆ ਕੂਕਰ ਖਾਈ। ਜੀਵਦੇ ਜਾਗਦੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਦਾ ਕੋਈ ਸਨਮਾਨ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਸੇਵਾ ਨਹੀਂ, ਕੋਈ ਆਦਰ ਸਤਿਕਾਰ ਨਹੀਂ, ਔਰ ਢੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਰਾਧ, ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਢੰਗ ਦਾ ਭੋਜਨ, ਔਰ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਇਹ ਪਿਤਰਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦੇ ਪਏ ਹਨ, ਇਹ ਪਿਤਰਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਸ਼ਰਾਧ ਪੈ ਕਰਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਔਰ ਜੇ ਦਾਵਾ ਇਹ ਹੋਵੇ ਕਿ ਵਾਕਈ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਇਸ ਬਾਰੇ ਇੱਕ ਬੜੀ ਤਾਰਕਿਕ ਜੋ ਯਥਾਰਥ ਤੇ ਖੜੀ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਮੋਹਾ ਕਾ ਘਰ ਮੋਹੇ, ਘਰ ਮੋਹੇ ਪਿਤਰੀ ਦੇ। ਜੇ ਕੋਈ ਚੋਰ ਕਿਸੇ ਦੇ ਘਰ ਸੰਨ ਲਾਵੇ ਤੇ ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਧਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰੇ ਤੇ ਉਸ ਧਨ ਨਾਲ ਸਰਾਧ ਕਰਾਵੇ, ਚੋਰੀ ਦੇ ਧਨ ਨਾਲ ਜੋ ਚੁਰਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਸੰਨ ਲਾ ਕੇ ਲਿਆਇਆ ਹੈ, ਉਸ ਪੈਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਸਰਾਧ ਕਰਾਵੇ, ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿਵਿਤ ਦੇਵੇ। ਤੇ ਜੇ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਵਾਕਈ ਪਿਤਰਾਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅੱਗੇ ਬਕਾਇਦਾ ਰੱਬੀ ਵਿਧਾਨ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ, तो रब्बी विधान बनाने वाले और रब बड़ा सियाणा है। या तो कह दईए कुछ जानता नहीं, अगर वो सब कुछ जानता है तो अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे। अगे वस्तु की पहचान हो जाएगी कि वस्तु ते चोरी दी है, सन लाई गई, चोरी की गई, उस नाल धन आया और उस धन दे नाल श्राद्ध कराया गया, तो वस्तु ते चोरी दी हो गई।
ਤੇ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਚੋਰ ਬਣਾ ਲਏ ਜਾਣਗੇ। ਅੱਗੇ ਵਸਤ ਸਿਆਣੀਏ ਪਿਤਰੀ ਚੋਰ ਕਰੇ। ਜੇ ਪਿਤਰਾਂ ਦੇ ਨਿमित्त ਚੋਰੀ ਦਾ ਧਾਨ ਅਰਪਣ ਕੀਤਾ ਹੈ ਤਾਂ ਫਿਰ ਪਿਤਰ ਚੋਰ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਅੱਗੇ। अगर वाकई अगे पहुंचता है और वाकई अगे साव सुजान है, अगर ऐसी मनोत है तो फिर पितर भी चोर हो गए। देखण दे चाया सारी दुनिया का कानून इस गल नूं मनदा है कि चोर ने जो चोरी की थी वो ते गुनाह है, पर जो चोरी का समान अपने कोल रखे या वेचे ये भी गुनाह है, ये भी जुर्म है। इस नुकता निगाह नूं गुरु नानक देव जी महाराज साडे सामने रखते हैं। अगर एक चोर नाजायज ढंग नाल उसने धन प्राप्त किया है, किसी का घर सन ला के किसी के घर दे चों चुरा के ते घर लिया के उस धन दे नाल श्राद्ध किया है, अपने पितरां दे निमित्त दान पिया करता है। महाराज कहन चलो इत्थे तक असीं मन लैने आ, लेकिन ये मनोत भी नाल होवे कि अगे पहुंचता है और अगे सारे सुजान बैठे ने, पुछाण वाले सियाणे ने परमात्मा का नियम, और परमात्मा बहुत सियाणा है, तो फिर अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे। फिर ते अगों वस्तु की पहचान हो जाएगी कि चोरी दी है, और पितर भी चोर बना ले जाणगे। क्या पितरां दे निमित्त कुछ भी नहीं भेजिया जा सकता? उन्हां नूं कुछ भी नहीं दिता जा सकता? इतनी गल ते स्पष्ट है कि अस्थूल चीज असी नहीं भेज सकते। अजोका विज्ञान भी इसकी तस्दीक करता है। विचारां दी पहुंच बड़ी दूर तक है, याद दी पहुंच बड़ी दूर तक है। किसी नूं बहुत गहरे तल तो याद करिए, भावें वो 3-4 हज़ार मील की दूरी ते होवे, तां देखण दे चाया वो याद करन लग पैंदा है। पितरां दी ते बहुत दूरी अथाह दूरी ते ने, पता नहीं किस जन्म दे किस जून दे किहड़े लोक दे। उन्हां पितरां दे निमित्त अगर कुछ भेजना है, देना है, अर्पण करना है, तो परमात्मा का नाम जपीए ते संकल्प करिए कि मैं ये पितरां दे निमित्त नाम जप रहा। और नाम सूक्ष्म है। सूक्ष्म वस्तु दूर तक भेजी जा सकती है, जैसे विचार बड़ी दूर तक पहुंचते हैं, याद बड़ी दूर तक पहुंचती है। इस तरह प्रभु चिंतन, प्रभु का सिमरन बड़ी दूर तक पहुंचता है। सतगुर दी बाणी जिन सिमरत सब किल विख नासे पितरी होए उधारो। पितरां दा भी उधार हो सकता है। असी अपने गुजर गए पितर बुजुर्ग उन्हां दा भी कल्याण कर सकते हैं, पर किस ढंग नाल? उन्हां दे निमित्त श्राद्ध करा के, अन्न वस्त्र दे के, पैसा पानी दे के, भोजन छका के। महाराज कहते नहीं, इसके नाल ते उसे दा ही कल्याण हो सकता है जो भोजन छक रहा है, जो वस्त्र ले रहा है, जो पैसा ले रहा है, उसका ही कल्याण होया है, पितरां दा नहीं। और ये पितरां नूं नहीं पहुंचेगा। ना गुरु नानक मनदे ने, ना ही भगत कबीर मनदे ने, और कोई दार्शनिक जिहदी धार्मिक विचारधारा बकायदा विज्ञानक दृष्टिकोण ते भी पूरी उतरदी होवेगी, वो कतई इस गल नूं नहीं मन्नेगा कि खावे कोई ते पहुंचे किसे नूं, और फिर उसनूं पहुंचे जो मुद्दत होई मर गया और पता नहीं किस जोन दे पता नहीं कित्थे है। तो ये धन किस तरह पहुंचेगा? ये वस्त्र किस तरह पहुंचणगे? ये भोजन किस तरह जो है पहुंचणगे? अगर कोई मनुख अपने पितरां नाल संबंध बना के रखना चाहे तो कुछ देना भी चाहता है, कुछ भेजना भी चाहता है, तो साहब कहते हैं हाँ दिता जा सकता है, भेजा जा सकता है। अजोका विज्ञान भी इस कोशिश दे है कि हो गुजरे पुराने जो बुजुर्ग ने, महापुरुष ने, उन्हां दे बोल काबू च कीते जान। खला दे जो मौजूद ने, इहदा मतलब उन्हां दे बोल मौजूद ने, उन्हां दे सूक्ष्म ढांचे मौजूद ने। अगर पितर किसे लोक दे पुनर्जन्म प्राप्त कर चुके ने, कोई होर जोन दे चले गए ने, तो उन्हां दा कल्याण करना है, किस तरह करिए? तो सतगुरु कहंदे ने प्रभु दा सिमरन कर, पर पितरां दे निमित्त कर। जह सिमरत सब किल विख नासे पितरी होए उधारो। पूर्ण दृढ़ संकल्प नाल
कि तू प्रभु ਨੂੰ याद करें ਇਕਾਗਰਤਾ ਦੇ ਨਾਲ और संकल्प करें कि इस कीती हुई याद ਦਾ फल मेरे पितरां ਨੂੰ मिले। महाराज कहने मिल सकता है, पर तू आखे हुण मैं श्राद्ध कराना है, किसी ਨੂੰ भोजन छकाना है, वस्त्र दान कराना है, दुध पिलाना है, खीर खवानी है, ये मेरे पितरां ਨੂੰ पहुंचे। तो गुरु नानक देव जी महाराज कहते ऐसा नहीं। अगर आख्या जाए हाँ पहुंचता है, कोई हट करे, तो महाराज कहते फिर ऐसा भी हो सकता, अगर कोई चोर, अगर कोई डकैत डाका मार के धन लियावे ते उस धन दे नाल श्राद्ध करावे, ते जे अगे परमात्मा सियाणा है तो उन्होंने इतनी भी पहचान हो जाएगी कि चोरी दे धन नाल श्राद्ध होया, तो फिर अगे वस्तु की पहचान हो जाएगी कि जब चोरी दे धन नाल ही श्राद्ध होया तो श्राद्ध सारे दा सारा चोरी हो गया, क्योंकि चोरी दे धन नाल होया ना, ये सारा पुण्य भी एक चोरी हो गया। जैसे चोरी करना पाप, चोरी दा साजो समान रखना भी पाप। अगर ये पितरां नूं दे दिता गया चोरी दा धन, चोरी दा अन्न, चोरी दे वस्त्र, चोरी दा साजो समान, तो महाराज कहते ने अगे वस्त सियाणीए पितरी चोर करे, फिर ते पितर भी चोर बना ले जाणगे, फिर तू की श्राद्ध कीता। और ऐसा कोई मनुख दावा नहीं कर सकता कि 100% मेरा धन पावन है, पवित्र है। कुछ ना कुछ मिश्रण झूठ दा होवेगा, कुछ ना कुछ मिश्रण दुनियावी होवेगा। अगर वाकई ये पहुंचता है तो फिर झूठ भी पितरां नूं पहुंचेगा, ये अनर्थ भी पितरां नूं पहुंचेगा, ये अन्याय भी पितरां नूं पहुंचेगा। महाराज कहते नहीं, इस तरह की अस्थूल चीजां पितरां तक नहीं पहुंचदियां। अगर पहुंचदियां तो एक चोर का कराया होया श्राद्ध पितरां नूं चोर बना देवेगा। अगे सो मिले जे खट्टे घाले दे, अगे कुछ प्राप्त होंदा है, मरण तो बाद प्राप्त कुछ होंदा है। महाराज कहते हाँ होंदा है। अगर यही देही कुछ घालना घाले, कुछ जप करे, कुछ तप करे, कुछ पुण्य करे तो नाश नहीं होंदे, ये मरण पर्यंत नाल जांदे ने, मरण तो बाद नाल जांदे ने। ये सब कुछ नाश नहीं होंदा, बल्कि मनुख झोली विच पा के इस सब कुछ नूं लै जांदा है। तो साहिब कहते जे तू अपना उधार चाहना है तो श्राद्ध दे भरोसे ते ना रही, अपना कल्याण खुद कर लवी, अपनी झोली गुणा नाल खुद भर के ले जाए। मता तू सोचे कि मेरे मरण तो बाद मेरे पुत्र श्राद्ध करा लेंगे, हवन करा लेंगे, जप तप करा लेंगे और इस तरह मैनू मोक्ष की प्राप्ति हो जाएगी। नहीं, परमात्मा की दुनिया विच इस तरह की बचकानी गल्लां नहीं ने। अगर कोई जीवन भर अनर्थ करे तो मरण लग्या पुत्रियां नूं कह देवे श्राद्ध कर देना, ताकि मैनू सब कुछ की प्राप्ति हो जाए और मोक्ष की भी प्राप्ति हो जाए। साहिब कहते नहीं, नानक अगे सो मिले जो खट्टे घाले दे। अगे मिलता है पर वही कुछ मिलता है जो ये दे घालना घाल दी। दूसरा जो ये आख्या जाता है कि फलाने जल दे इशनान नाल बंदा पावन हो जाता है, पवित्र हो जाता है। महाराज कहते नहीं, सूचे ए ना आखिए बहन जे पिंडा धोए, सूचे से ही नानका जिन मन वसया सोए। ये सुचे नहीं जो तरह तरह के तीर्थां दा इशनान करन या 2 वक्त रोज इशनान करन, वस्त्र साफ पहन लैन, मन लवांगे तन सुच्चा होया है। इहदे नाल मन दी सुचेम दा की मतलब? मन सुच्चा हुंदा है सच नाल, तन सुच्चा हुंदा है पानी नाल। इस वास्ते साहिब कहते सूचे से ही नानका जिन मन वसिया सोई। जे वीडियो चंगी लगे तो लाइक ते शेयर जरूर करियो। आप जी का बहुत बहुत धन्यवाद।